Namaskar, Namaste, hello, good evening, and a very warm welcome to my show, Conversations with Teenath. And in Conversations with Teenath, in association with freebirds.co, we bring to you wonderful, wonderful human beings of this earth. And today we have one such wonderful human being who's all the way from Gujarat. Why I'm saying this is because I'm sitting in Assam, I'm conversing with somebody wonderful in Gujarat, and here he is. Please welcome Murtuza Redviwala. A very warm welcome to you, Mr. Murtuza. Thank you very much. Thank you, Tina. So nice to be on your show. Thank you. Thank you for. Wonderful. It's lovely. It's lovely to have you on my show because you are such an accomplished person. When I was reading your profile, I was so happy that I have a person of your magnitude, of your stature in my show. And I'm truly, truly privileged and truly proud that you're here with us today. And I'm so happy that our viewers are getting to see a person who has worked nonstop all his life till now and in doing so many different kinds of things. You are into psychology, you're into psychotherapy, into dance movement, and into adventure. This is like such a beautifully rounded up life that you have got. And I'm seriously wanting, I'm just excited to, I've been excited all along to be hearing from you. And today we will start by asking you, where did it all start? I mean, you are the founder and director of Sparsh. We are going to talk about Sparsh in some time. But you are also a psychologist. So before I even hand over the microphone to you to speak, I have to introduce you to my viewers. All people who are waiting here, we are, my dear viewers, we are going to speak with smatterings of Hindi from me. My Hindi is always like Bindi, but we are going to speak in Hindi and in English. And this is a conversation which we're having. I have my tea with me. Mr. Murtuza has his tea with him. So this is like a conversation over tea. So we're going to have a lot of fun. But I must read out this beautiful profile for all of you. Mr. Murtuza Redviwala is a psychologist. He's a movement therapy practitioner and a psychotherapist. You must listen very carefully. He's got a wonderful profile. He's the founder and director of Sparsh in Surat. He's a holder of a master's degree in clinical psychology. He's a postgraduate in mental health profession from the University of Roehampton. Have I got that correctly? Roehampton? That's correct, right? Right. Roehampton. PGD, he's a postgraduate diploma in natural therapy, a bachelor degree in performing arts, that is dramatics, certification in creative movement therapy from CID and CMTAI Bangalore, and diploma in dance movement therapy from CMTAI and St. Mira College, Pune. And he's a trained and passionate mountaineer and theater artist. Personality, of course, this comes with it because of the personality of his type is here with us. He's a personal development programmer amid adventure, theater, and psychology. Wow. I just love reading these sort of profiles, and it really excites me that people are not in their time. This time, I'll tell you, Mr. Murtuza, what has happened is that a lot of people will say, what will happen to our future? What will happen to us? Ma'am, we are finished. We are doomed because the COVID has taken over and everything is destroyed. All our dreams and plans are gone out of the window. They're gone with the COVID. But I don't think it's like that with you. You have had a beautiful life from the beginning. And let us start from when you started. पहले से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं. तो आप कब शुरू किए, कब किए? आपके स्टोरी सुनने में हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है. अब बताइए प्लीज. Okay, so I would like to speak about first psychology, right? Because see, अगर मैं कहने जाऊँ तो adventure is my first love, mountaineering. But at very early age, when I start trekking in Himalayas, so from that I've been very passionate about the mountaineering. But let's focus on the first. I would like to talk on the psychology. Now, psychology journey starts when I complete my 10+2. And then I started my graduation with psychology and I've done my master's in clinical psychology. And after that master's in clinical psychology, I've done a long-term internship program to learn the basic skills of psychology and all that. And why psychology interested so much to me, why it is specialty? Basically,
and it is, as you told, कि मेरा खुद का story है. So at Worli, when I was schoolboy, I was having lots of learning problems. मतलब पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगता था. I was not that kind of a bright student at my school time, and I was not that much interested. But I was always interested in some kind of an outside field like adventures and theaters and all that. But it's always having wondering me ke, why I'm not able to do that such performance, and even I'm so much interested in studies. What is wrong? What is wrong with me? And my friends and people are doing very less amount of work and getting good percentage and all that. Even my parents ever never had pressure me about the marks and all kind of things. They always push me, just study, that's it, do whatever you want to do. But it always, what is wrong with me? So that curiosity built up me. And the second curiosity, why people behaving differently, being in the same family, why people having so different, why there is so much of diversity in culture, why there's so much of diversity in language, the tone, why people are so different, being a same body structure, the same, everything is same, there is nothing on the specific body, but all people different, all people differently able, they are doing so many things differently. What is that? What is that? And during my studies, so from very basic level, when I was in 10, that was in way before in 1992, in Surat and in even the South Gujarat, psychology was nowhere. If you were to find a psychologist, means it was too difficult. So then I start turning and I start talking to my few teachers and all that. And I was asking the question, why this? For that you need to study the brain. Okay, for that, because brain is different, brain is different. Okay, fine. So that lead me to study psychology in my graduation. But graduation के बाद मुझे नहीं लगा ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी पता नहीं. It's about the brain anatomy and it's all about the science. Why the behavior is different? So फिर मुझे बताया कि you go with a master's program with clinical psychology that give you more detail about how human behaviors. Then I gone to the theories of the human behaviors, the personality and kind of things, and I started getting it. See, as मैंने पहले बताया, I was not a good student, and still the college and my master's degree, my handwriting was like a very poor. I was not able to all get correctly. During my internship program, when I was in my internship program, and then I studied the all disorder kind of this thing properly, and then my mentor, Dr. Sudipta Roy, and she has been my mentor throughout till now so far also, like my guru in psychology. And when we discussing the reports and all that, you know what is the problem with you? Yes, ma'am. You are a LD. Okay, fine. Then see, nothing was diagnosed that time, and nothing was, that like streamlined. But then I started more curious about what kind of problem, and then slowly I come up with yes, there is a learning problem, there is a language problem. So and even I want to like to talk, there is a lots of stigma in the society. बहुत सारा लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए. And धीरे धीरे after completing my masters, when I doing my internship program and all that, slowly I come up to more detail about the psychology, the psychological assessment and therapy. Now, psychology is a so vast field, so vast. Still I am a student, still I am a learning. तो कहने का मतलब है कि एक साइकोलॉजी का कुछ पढ़ने से नहीं मिलता है कुछ. You need to go more detail. So I start going in more detail and all that, and then I come to things that is a so vast field, and you need to go with so many minute details about the assessment in psychology, about the therapies in psychology, about theories in psychology. And slowly I came up. There is a lots of individual differences in human being. There's lots of individual differences with so many castes and creeds and all that, and how the people think, why the people think, how the thoughts comes, and what thought are there which trigger lead to the behavior, and there is a behavior analysis also. So बहुत कुछ hard work के बाद पता चला कि exactly ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से वो लोग सोचते हैं, किस प्रकार से वो बात करते हैं. And slowly and still, as I say, I'm learning. Now in mental health, I am working from last almost 18 years. जैसे मेरा मास्टर्स खत्म हुआ, I start my internship, I start my course at that time. So
till now so far, still there is so many research is still now still the psychologist field of exploration. Still there is a research is going on. Still there is a new kind of therapy is coming up. Still people are exploring kind of things. So मुझे लगता है psychology never end a journey. कोई भी mental health professional है उसका कभी journey end नहीं होता है as a student. It is going a pretty long. And after that मुझे लगा कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, when I started my practice, still I feel that still there is something is lacking. I wasn't before a narrative therapy practice, मतलब जो counseling करते हैं, still I feel that there is और कुछ हो सकता है. Then I divert myself to learn more about the movement therapy, about the creative movement therapy, about the dance movement therapy, and still I am exploring also that, right? So, and I feel that there is a lot of stigma in the society about the mental health. And I gradually, slowly started working on the awareness programs also about the psychology. So ये कहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये तो शुरू हो गया बचपन से, जब से मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. And when I see people differently, and that actually lead me to this profession. And it's very good कि when your passion become a profession, right? So it always motivating me. कभी भी जॉब स्ट्रेस नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं कि आज काम में मजा नहीं आया. I get a 100% job satisfaction when I'm doing a mental health work and mental health profession. So that give me boost up and energy. Yes, I want to go. And in psychology, I have been practicing from last 18-20 years. Till now, so far, those cases come across. Not a single case, not a single individual, not a single client has been repeated. Means मतलब एक इंसान जो जैसे आया है उसके जैसा दूसरा आज तक नहीं आया. तो तीनों आप देखो कितना डाइवर्स है, मतलब ह्यूमन माइंड कितना एक्सप्लोर है. हमको लगता है कि जैसे बहुत कॉमन वर्ड है डिप्रेशन, सबको पता है डिप्रेशन. सो अगर एक इंसान को डिप्रेशन है तो उसका पूरा जो केस हिस्ट्री है, पूरा जो उसका थियरी है, उसको किस रीजन से हुआ है, is entirely different to compare to a person B with a depression, person C with a depression. So there are so many disorders, but the individual are different. So what is the beauty of the psychology? It's nothing common. Every time is new. Every time you need to be prepared कि आज कुछ nothing कुछ repeat होने वाला है, जो कल का केस था वो आज आने वाला. No, every time when you go with a new client and new cases, every time they bring a difference, a new, and everyone is special. Everyone is special. And those who are children with having some kind of a problem, the learning disability kind of things. So we call it the special children because yes, ऐसे बोलते हैं ना, भगवान अगर कुछ नहीं देता है तो कुछ ज्यादा दे देता है, right? So दूसरी एबिलिटीज क्या है वो चेक करो. ऐसा नहीं है कि अगर मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, ये अभी बात निकली है तो सिर्फ मार्क्स, सिर्फ आपका एजुकेशन, सिर्फ मार्कशीट इज नॉट ओनली द बैरियर टू चेक योर चाइल्ड, योर कॉग्निटिव, योर इंटेलिजेंसी, योर इमोशनल. इट इज बी अ सेल्फ. वो खुद क्या है, वो उसने जो एजुकेशन लिया है वो किस तरह से एक्सप्लोर करता है. और मान लो कि एजुकेशन नहीं लिया है तो भी वो खुद एक सेल्फ है. Every person is special and every person is having his own ability. The thing is need to explore that. What is within me? What is the self? What is journey of the self? अगर ये हम जान ले कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ, मतलब मैं यही वन हाफ यही बीच में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपसे. एक 2-3 बात इनफैक्ट. जब मैं साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, बहुत ज्यादा, मैं आई वांटेड टू स्टडी साइकोलॉजी एज अ यंग गर्ल. सो आई टोल्ड माय मदर, मैंने मम्मी को बोला कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है. तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी पढ़ के कौन सी बड़ी बात करोगे, विल यू बी एबल टू सर्वाइव. अभी देखिए हर जगह में ही आपको corporate psychology, clinical psychology, everything is related to psychology at the end of the day. My mom passed away last year, but I wish she would have known that psychology is such an important thing. आजकल कितनी ज़्यादा important हो गए हैं कि psychology has become a subject to reckon with. पहले जब मैंने कई साल पहले मेरे एक friend था,
तो वो हमेशा बोलते थे कि मुझे मन ठीक नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हिम दैट यू शुड गो मीट अ साइकोलॉजिस्ट, नॉट अ साइकियाट्रिस्ट। आई यूज्ड टू टेल हिम गो मीट अ साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बोला बाप रे, इतने बड़े बात बोल दिया, यू आर टेलिंग मी टू गो टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, हम पागल नहीं है। हमने बोला नहीं नहीं, ये पागल होने का बात नहीं बोल रहे हम। आई एम सेइंग दैट द साइकोलॉजिस्ट विल काउंसिल यू, will tell you what exactly to do and what not to do. The person is not going to put you into a pagal khana or something. So the stigma that you were talking about psychologist, about psychotherapy and all these things, people are yet to learn so much. You yourself being a person who's 18-20 years into this whole thing, आप अभी भी बोल रहे हैं कि आप लर्न कर रहे हैं, आप फिर भी स्टडी कर रहे हैं। आप सोचिए ऑर्डिनरी पीपल, मतलब जो अभी कोविड में है, तो वो लोग अगर हम उन मेरे स्टूडेंट को हम बोले कि नहीं यू शुड मीट अ साइकोलॉजिस्ट, मैं तो इनिशियल थोड़ा सा लिसनिंग वाला जो काम है वो तो कर लूंगी, ठीक है, बट ही हैज टू गो एंड मीट एन एक्सपर्ट लाइक यू। आपके जैसे एक एक्सपर्ट को मिलना चाहिए, बट दे आर गोइंग टू गेट स्केर्ड, नहीं 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 नहीं, बाप रे बाप, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट को तो मिलना ही मतलब ये है। तो ये दोनों बात मुझे मतलब आपको बोलना था, शेयर करना था। आप बताइए, और प्लीज सॉरी आई इंटरप्टेड यू। No, no, it's okay completely. नहीं, ये आपने Tidet, it's a very important point, and there's what I was talking is lots of social society में एक stigma है कि psychologist के पास नहीं जाना है. You know, when I come to talk with my creators, मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्योंकि क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि जब किसी को कोई भी मेंटल प्रॉब्लम होता था, राइट, सो वो स्पिरिचुअल हीलर्स के पास जाता था, और जो मतलब यहाँ पे बोलते भूत बुआ, राइट, सो उनके पास जाता था, वहां पे उनको एक अजीब सा ट्रीटमेंट मिलता था, मतलब उनको भांग देते थे, तब दे वर टाइड अप विद द ट्रीज एंड दे वर बीटन लाइक एनीथिंग एंड दे वर बीन चेन्ड एंड दे विल बी हैविंग so much bad treatment by the society who has been some kind of a problem, right? So that's why people consider this treatment is very heavy, and ultimately going to a psychologist or a psychiatrist is being mad. It is not like that. I just want to take an opportunity on this national forum. Okay, going to a psychologist or a psychiatrist or a mental health professional. चलो ये दोनों word थोड़े ज़्यादा stigma देते हैं. So I come up with the word mental health professional. जो mental health, see, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि suppose I'm driving a two-wheeler and I fall down and my this finger get cracked down or I'm getting much pain. Instantly I will go to orthopedic and see, sir, what is the problem? He will say, go with an X-ray. Okay, now this is broken and you will be tired and there's 21 days and you will be fine. So I will be okay, very happy. But if I'm going with a lots of thought disturbance, if I'm getting irritated, if I'm getting, boiled up, I'm getting anger, I'm quarreling, or I'm very upset, I'm getting depressed, I'm sad, I'm not that kind of a jovial person, I don't want to work. So that time I'm not feeling to go with any mental health professional, or even I'm being bit reluctant to share also. मैं बात भी नहीं करूंगा किसी से, अगर मैं बोलूंगा अरे क्या तू पागल है क्या? So that is so much people have been tagged this thing in manner compared to the other physical disorders, other physical problems. Even you go with a mild headache also, even the cough and cold, you straight go to even MBBS. I am having some kind of problem. Where you are having a mood swings, you are a suicidal, you want to die, you don't want to live, you are having not full of life, but still you don't want to go to mental health professional. Why? Because there's lots of stigma. I just want to say to all of the people, see, going to a psychologist or a psychiatrist or a mental health professional or a counselor is big helping you, because जब आप सिर्फ शेयर भी करते हो, जैसे आपने बोला वेंटिलेशन, राइट, जैसे आप सिर्फ शेयर भी करते हो तो भी आपका हाफ बिन गॉन डाउन, राइट. Only sharing is not healing, but sharing and working on the thoughts, and thought will change your behavior is going to help, and that is the therapy, right? So बात करने से, और कई लोगों को ये भी लगता है बात करने से क्या होगा, बात करने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होता है, तो ये भी नहीं, बिकॉज दिस बात करना और जो बात करना, जो लैंग्वेज यूज करना, एक साइंटिफिक प्रोसेस से आया हुआ है. It is not just merely talking. Right now we are talking. It's not. When it's going for a psychotherapy session, कोई भी आप psychotherapy ले लो, just movement therapy ले लो या individual talk therapy, ये बहुत ज्यादा रिसर्च होने के बाद इसको बनाया गया है, और वो बात बहुत ज्यादा साइंटिफिक होती है, वो लैंग्वेज बहुत अलग होती है, जो आपको हेल्प करती है
अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने में, जो अल्टीमेटली आपके थॉट प्रोसेस आपका बिहेवियर, अगर मैं सुसाइडल हूँ तो आई, इफ आई फील आई वांट टू जंप, but there is a thought behind it. So why I want to jump? Because I don't want to live. Why I don't want to live? Because I am helpless. I'm worthless. So there is a thought. So we need to work on that. So every time you cannot, stop people on suicidal things. आप जाके ब्रिज पे खड़े रहो या आप ऐसा करो, नहीं हो सकता ये. You cannot stop the act, but you definitely change the behavior. So behavior, you're going to change the thoughts. So thought पे तो काम कर सकते हैं ना, वो तो बात कर सकते. जैसे साइकोथेरेपी में हम बताते हैं कि किस तरह से आपके थॉट को चेंज करना है, कि नेगेटिव थॉट जो आती है उसको कैसे हम कन्वर्ट करें. जैसे कई बोलते हैं स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. You cannot stop thinking, but you definitely change the thinking. So rather stopping the thinking is not going to, because thought is going to come. आप जितना बोलोगे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ना, काली बिल्ली के बारे में बिल्कुल मत सोचना. डोंट थिंक ऑफ अ ब्लैक कैट. आ गया आपके सामने कैट, सो दिस इज द थिंग, राइट. सो दैट ये हम नहीं रोक सकते, मगर हमको बदल सकते हैं. और जैसे हमारा थॉट प्रोसेस बदलेगा, हमारा बिहेवियर बदलेगा. एंड इट्स अगेन अ लिंक चेंज, या बिहेवियर एंड थॉट. सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स. सो आपको जाके बात करनी चाहिए, राइट. शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, तो आपकी बहुत सारी तकलीफ कम हो जाती है, राइट. एंड पीपल इन द फील्ड आर देयर टू हेल्प यू. यू गो टू एनीवन. ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसको ही के पास जाओ, या जिसको आप कंफर्टेबल फील करते हो, राइट. जिसको आपको लगता है, जिसको पता है कि उसको थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पता है, मैं जाके शेयर करूं और वो कहीं पे आपको रिफर कर दे, तो भी हम बहुत सारी लाइफ को बता सकते हैं. जैसे आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन 2019 रिपोर्ट कम डेली 381 record suicidals has been recorded in India. Daily 381 जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है. मैं बोलता हूँ उससे भी ज्यादा है, मगर ये भी बहुत ज्यादा है. रोज के 380 लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं अपने आप से. नेक्स्ट तो हम रोक नहीं सकते, मगर हम ये तो रोक सके कि अपनी आपकी जान को तो बचाए, राइट. तो हम बात तो करें एटलीस्ट. सो हम अवेयरनेस का बहुत सारा काम करते हैं. जब उस पर बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, मगर एटलीस्ट बिफोर एन एक्ट जस्ट टॉक, इट मे हेल्प यू, राइट. बिकॉज लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइफ इज ओनली वन, राइट. True. सो वी नीड टू थिंक ऑफ इट. So I want to tell you something. आपको एक बात बताऊं. 2009 को मुझे ये टेंडेंसी हुआ था कि मैं अपने लाइफ को खत्म कर दूं. ठीक है. Okay. हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि आप एक एक्सपर्ट हो, आप इसीलिए हम बोल रहे हैं. आई वांटेड टू एंड माय लाइफ इन 2009. रीजन सुनने से भी आपको मतलब आपको हंसी आएंगे, शायद नहीं आएंगे, पता नहीं. लेकिन मुझे ऐसा हो गया था कि आई हैड पुट ऑन सो मच वेट आफ्टर माय सन वाज बोर्न इन 2006 दैट आई एम अ स्टेज पर्सन. मैं मतलब बहुत ज्यादा स्टेज में एंकरिंग करती हूँ, बहुत वीवीआईपी प्रोग्राम्स करती हूँ. तो लोग मुझे नहीं बुला रहे थे बिकॉज आई हैड बिकम टू फैट. आई हैड बिकम अराउंड 90 किलोज और समथिंग. नोबडी वाज कॉलिंग मी. सो मुझे डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन. इतना हो गया कि अराउंड 2009 दिसंबर, मुझे भी याद है, इतना मुझे मतलब मैं गाड़ी चलाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्पीड में जाके गाड़ी को उड़ा दूं. मैं ब्रिज के ऊपर से मैं कूद जाऊं पानी में, ब्रह्मपुत्र में जाके कूद जाऊं. ये सब थॉट्स आ रहे थे. बट थैंकफुली उसी समय क्या हुआ, मुझे एक बहुत ही अच्छा किताब मुझे मिला. आई टॉक टू माई हस्बैंड. आपने बोला था कि टॉक, लिसन, यू शुड ऑल्सो टॉक. बट आई टॉक टू माई हस्बैंड. मेरे हस्बैंड ने क्या बोला था, मैंने सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में नहीं बोला. मैंने सिर्फ बोला कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम वेरी सैड, कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेट बिकॉज आई एम बिकम वेरी फैट. वो बोले कि तुम डाइवर्ट करो, गाना सुनो, किताब पढ़ो. He was giving me these sort of advice. So I was saying, अरे मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, क्या बताओ क्या करूं. Then what happened, एक किताब मुझे मिला. I got Dale Carnegie's Stop Worrying, Start Living. तो ये किताब पढ़ के मतलब मैं 1 तारीख से 1 जनवरी 2010 से बिल्कुल ही नई एक जीवन मुझे मिला. I was totally born again. born होके फिर वो बात छोड़ दिया. फिर I said forget about dying, now I'm going to live. So मुझे so हमेशा जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ, मोटिवेशनल या कुछ स्पीच या कुछ भी देती हूँ, आई ऑलवेज स्पीक दिस पर्टिकुलर स्टोरी कि लाइफ, आप जो बहुत ही अच्छा बात बोले, एक आपने बोले थे कि लाइफ इज ओनली फॉर वन टाइम.
it doesn't come 10 times. So live No. this at the best we can. As by ending it, everything is gone, finished. And then we should speak to experts like you. Yes. Right. So I was thinking that you have got so many. Your profile is so huge. You have got this movement therapy. You're a Hmm. movement therapy practitioner also. Please tell us Yeah. something about it. What is it all about? Movement therapy. Okay. See, it has have been recently started the learning part. I have started this in 2017. But the 3 saal, it has been three years, and currently last year I complete my diploma, PG diploma in dance movement therapy. Now, see, uh, basically it's an you need to move your body. Now the session has been planned. See, first I would like to talk about the narrative therapy. In that, the counseling you must be knowing when two-person sits and talks, and that talk is scientifically talks. There is sometimes there is a limitation of this narrative therapy kind of things, and for that there is a new concept, not a new concept from Europe and America. It is practicing for about 25 more than years. India, it is now upcoming with the movement therapy. So movement therapy is about the same. There is a role of a therapist and there is a role of a client. इसमें uh, there is systematic movement of a body, right? And that is an expressive way, right? Now, the word dance movement therapy doesn't mean a client should be a dancer or a therapist should be a dancer, right? A creative movement therapy, that doesn't mean that we need to entire time to move about the body. It's an combinations of a movement. Now, suppose the movement therapy, मतलब the body language, suppose the body language never say lies. आप चाहे जितना भी ट्राई कर लो, आपका बॉडी कभी झूठ नहीं बोलेगा. आप अपनी जुबान से झूठ बोल सकते हो, मगर बॉडी से झूठ नहीं बोल सकते. बॉडी speaks. It is so expressive, right? So we need to use this body parts in expressive manner, and that help you in ventilation process also, and that help you in your cognitive process also. Now, there is this piece of a music, a light music, right? And if I say just like to move, so you are moving your body, listening to music. Now everyone will respond differently, as psychology is very individually different. Now, how you are moving your body, and that is called a body analysis also, right? So we analysis also किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी बॉडी का यूज कर रहा है, कहाँ उसका हाथ जा रहा है. And in the session, it is not only about listening and movement, it is a listening movement. In between, they also express, we also talk, we call it verbal communications, and they can express with the drawings, color, painting, clay. So it's oral and holistic approach. So, and after moving your body, the client feel relaxed, right? And feel like as something has been, that's coming out, right? And इसमें client the moods भी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी happy भी हो जाता है, sometimes kind become very sad, they start crying also. But for a movement therapist, he need to learn more very proper, and if he feel quite confident, and then he can use this part of a therapy, because sometimes it become very intense, and if the therapist is not that much capable and confident, it maybe sometimes will be likely difficult to handle the client also, right? So overall, it's a very nice experience. And compare, जैसे मेरा एक comparative studies है कि I was a narrative therapist, and then I switched to movement therapy. Now I am doing both the things. So comparative में देखा जाए तो एक दो cases में अंदर when it is about the using the entire body, using the experiential movement, expression, and cognitive transformation changes. So I found a quite better and good result compared to the narrative therapy, right? That is just I am discussing the case. I have not researched properly, but that happens. So see, इसीलिए मुझे लगा ना कि अब थेरेपी से मुझे कुछ और आगे जाके सीखना होगा. So जब मैंने ये जाके सीखा तो मुझे अच्छा लगा कि चलो, this is also one of the very good therapy. So that is all about okay, how we need to end the session could be, and that is also
वेरी गुड इफेक्टिव इन ए ग्रुप। अगर आपके पास बच्चे ज्यादा है, बहुत सारे, आप स्कूल में जाते हो, आपके पास स्पेशल बच्चे हैं, एंड यू मेक मूव and see, you sit and talk to bacha 20 minutes, that's it, done. But if you want to make a move, you can go with 2 hours. So मैंने कई सेशन मैंने जब बच्चों के साथ किए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ, it goes 2 hours and there was so much of transformation because it's a collective process, right? All together come with some kind of movement and some kind of a things. So it's really a wonderful, and client feel very happy by doing this, right? So that is all about the movement therapy. ये It's डांस still I am मूवमेंट, learning. yes, Yeah, yes. I think I did it with one of my friends, Namrata. She right. has been, Yeah, she had, you know, kind of called us. She had invited us, and we, some of my friends, we did it. And I'll tell you one thing, Mr. Murtaza. After that, what has happened? Daily, on a daily basis, मैं नाचती हूँ. मॉर्निंग एटलीस्ट हाफ एन आवर मुझे नाचना होगा ही, नहीं तो मुझे मतलब दिन मेरा शुरू ही नहीं होता है. हाफ एन आवर आई हैव टू डांस. And it's kind of, I try to move as much as I want, and any kind of movements I want to do, I jump, I skip, I hop, I do anything. I'm like a little child, so I try okay. to have the child in me when I'm doing it. It's like a therapy Yes, for me. yes, So yes, yes. basically I'm very happy. उसके बाद मतलब मुझे बहुत ज्यादा happy हो जाते हैं हम पूरे दिन के लिए. मुझे एक अच्छा एक पॉजिटिव एक मतलब ऑरा से हम काम करते हैं. So this is really beautiful. I think more and more therapists like you, dance movement therapists, should be, you know, should come out more in India, so that Yeah, we have more and more happiness. और ये yes, yes. hatred सब कुछ चला जाता है. चला Everything should जाता go out, and we should only keep dancing. है. And we जैसे should. सी एज आपने एक्सपीरियंस किया तो आप इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते, बिकॉज सी द डांस मूवमेंट थेरेपी इज ऑल अबाउट वेरी एक्सपीरियंस, राइट? सो एंड अगेन if you are able to move your body, if you are able to move for 15-20 minutes, the serotonin level जो ब्रेन में अंदर होता है वो उसका अपलिफ्ट होता है, तो वो अगर उसको बोलते हैं हैप्पी केमिकल. सो हैप्पी केमिकल जनरेट होता है जितना भी आप मूवमेंट करते हो. अगर मान लो कोई आदमी जिम नहीं जा सकता है, योग नहीं कर सकता, जैसे आपने बोला ना 20-25 मिनट मैंने नाच लिया तो आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ गए, हैप्पी सिम्टम जनरेट, पूरा दिन अच्छा गया, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, या. ये तो मुझे हैप्पीनेस है. मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा हमको देखते रहते हैं. ये बोलता है कि क्या पागल औरत के जैसे, व्हाट इज शी डूइंग, शी इज डांसिंग ऑल द टाइम. सो बट आई डोंट केयर. फॉर मी डांसिंग इज थेरेपी. फॉर मी आई थिंक आई वांट टू आस्क थ्रू योर थेरेपी, आप जो बोल रहे हैं आज, I want to tell all the viewers here today, please keep on dancing. Early in the morning, do a spot of dancing and you will feel very happy. That is the best therapy in the world. Very true, very true. Yes, yes. So I have also something very interesting. You are a person of you wear many hats. Can we talk about your theater experience? You have put in psychology, you have put in dance therapy. How is your theater related to your work? I'm very interested to know that. या डेफिनेटली. सी थिएटर मैंने बहुत मतलब यू नो बहुत दिल के करीब है. एंड व्हाई थिएटर? सी अगेन it starts from very early college. I was very much interested. मैं ज़्यादा एक्टिंग नहीं करता हूँ, मगर when I started my journey with mental health, and I feel that there is lots of stigma in the society and people don't want to come. So what I did theater. I used theater as a medium for awareness of mental health. So ये मैंने काम किया, right? और मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी अब तक मैंने प्रोडक्शंस किए, we call it play productions, right? जितने भी स्टोरीज मैंने स्टेज पे किया है, it's all about the mental health awareness. Suppose about the learning disorder, I have made a अजब बच्चों की गजब कहानी, और so that was play जो मैं गुवाहाटी में आके परफॉर्म किया है. Oh, I should have been Yes. there also then. But बहुत टाइम पहले मैंने गुवाहाटी में आके परफॉर्म किया कि गुवाहाटी शिशु नाट्य विद्यालय every year they run a children theatre festival. So my play was selected over there and we were there. अजब बच्चों की गजब कहानी carries on the learning disorder play. अगर बच्चे को LD होता है तो फ्यूचर में क्या होगा वो मैंने बताया. फिर I have made a play on depression, on anxiety, on insomnia, interpersonal relationship, bipolar, schizophrenia, right? So these all are things, because अगर यही बात है कि
सब लोग, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, एलडी बच्चे को भी पागल बोलते हैं, या एमआर बच्चे को भी आप पागल बोलते हो, या डिप्रेशन को भी पागल। सो ये लोग ऐसे ना बोले और ये थिएटर देख के समझे। एटलीस्ट मैं, अगर मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन डिप्रेशन, नो वन गोइंग टू कम। If I'm going to say there is a play and wonderful play come, so people, you know, visuality अगर होती है और play होता है, अगर movie होती है तो people come. So what I think is people are coming to see the theaters. So let's use this medium for presentation, for a mental health awareness. And after my one or two play, the people has responded so wonderfully. They told, oh, you, this is, we were in that kind of a depression. And generally मैं play के बाद I keep a small talk and I talk with audience, right? Okay, what do you think about this character? How, what is kind of performing? क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है? So people को बोलते हैं ये लगता है, मगर हमको ये लगता था, मगर अब देखने के बाद लग रहा है कब ये हो रहा है, right? So this is the thing. So the theater journey has been very wonderful for me. My जिसकी की मैं बात कर रहा हूँ वो नेशनल, एक बात अनकही, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के अंदर जश्न बचपन जो इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था उसमें भी सिलेक्ट हुआ, तो वी हैड परफॉर्म टू दिल्ली आल्सो। दूसरी जो बात है कि माय थिएटर इज एमेच्योर एंड इट इज नॉन कमर्शियल थिएटर। मैं जो भी थिएटर करता हूँ, जितने भी अब तक प्रोडक्शन किए हैं, जहां भी मैंने प्रेजेंटेशन किया है, मैंने ऑडियंस से ₹1 नहीं मिला, नो। बिकॉज मैं मानता हूँ कि थिएटर एक बहुत प्योर एक माध्यम है और बहुत अच्छा माध्यम है, और इसकी जितनी सेवा करो रंग देवता की उतनी अच्छा, राइट? सो ये मेरी सोच, राइट? तो मैं चाहता हूं कि मैं थिएटर जितना भी करूं वो अवेयरनेस के लिए करूं, लोगों में एक जागरूकता आए, लोग आए, देखे, समझे, और मैं उससे कुछ भी लेके घर पे नहीं आऊं। मैं नहीं चाहता कि मैं थिएटर से, मैं एवरी टाइम माय व्हेन आई यूज्ड टू माय प्ले परफॉर्मेंस and I need to spend money for the stage and lights, and now it becomes so expensive. But still, I have done till now so far from last almost 16-18 years, and still I want to continue with the same journey. और मैं आपको एक बात बताऊं कि the theater journey has been, there is also called drama therapy. That is also I'm learning, but I'm not an expert to speak on about it. But the theater is therapeutical. जैसे डांस एक थेरेपेटिकल है, जैसे आपने बोला मैंने सुबह डांस किया और मुझे अच्छा लगा और मेरा दिन अच्छा गया, सेम एज द थिएटर इज आल्सो थेरेपेटिकल इम्पैक्ट। नाउ व्हाट आई हैव डन, आई हैव, जब भी मैं जो चीज बनाना चाहता हूँ, अगर मान लो कि मैं एलडी बच्चों को, एलडी बच्चे का प्ले बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हूँ, राइट? और थोड़ा ज्यादा मुझे परफेक्शन भी मुझे काफी पसंद, तो आई हैव टेकन अप द एलडी किड्स टू द प्ले। दे वर एक्टिंग, एलडी के बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, सबको एक्टिंग सिखाया, सबको समझाया, और हम सबने मिलकर प्ले किया, राइट? सो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सेल्फ एक्सपीरियंस वाला हो। और मेरे साथ जो टीम है, टीम का भी कई बार इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो चीज जो लोग कहीं पे बोल नहीं पाते हैं या कहीं पे कह नहीं पाते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी में एक डायनामिक चेंज आया, राइट? थिएटर करने के बाद उनके पर्सनालिटी में इतना अच्छा चेंज आओ, बिकॉज ये बहुत अच्छा मीडियम है एक्सप्रेस करने का। और मैं मानता हूँ थिएटर एक्सप्रेशन तो है ही, और आपको फ्रीडम भी देता है, राइट? यहाँ पे मैं दो थिएटर की बात करता हूँ कि एक तो एक स्क्रिप्ट है, आपने स्क्रिप्ट लिया और उसमें कैरेक्टर को दे दिया और उसने वही किया, और एक थिएटर है जो क्रिएट करते हैं, मतलब देयर इज नो स्क्रिप्ट। वी सेड वी, आई डू वर्कशॉप्स ऑफ थिएटर्स, और हम बैठ के बच्चों के साथ बात करते हैं और कॉलेज स्टूडेंट के साथ बात करते हैं। वी गो टॉकिंग, वी गो ऑन शेयरिंग, एंड we create small improvisation scene, and from that collectively we create a play, right? Okay. So that is so experiential, and they feel this is my story is running, this is me, and जो अब तक वो कह नहीं पाया, जो अब तक वो बोल नहीं पाया, जो सफोकेशन, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो खुल के बाहर आती है, और जो बाहर आती है तो वो इतना दिलो जान से परफॉर्म करता है कि आपको लगता है कि यही रियल है। सो मैं मेरा भी तो कहना यही है कि तुम एक्सप्रेस करो अपने आप को, सो दैट बिकम थेरेपेटिकल, राइट? एंड और सी, हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, कहीं कहीं पे अटकते हैं, हम वो नहीं कर पाते हैं, करना चाहते हैं। सो थिएटर आपके पास है कि जो आपको नहीं करना है वो आके कर। सो मेरा वर्कशॉप पैटर्न और मेरा वर्किंग पैटर्न थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि मैं स्क्रिप्ट वाले भी प्ले करता हूँ,
जब हम फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं, जब हम कंपटीशन में परफॉर्म करते हैं, so we go with a script and we perform, and that in that also I try to be a process oriented better, you know, think about your character. मैं कभी भी किरदार को ऐसे करो, ऐसा लो, ऐसा मत करो, ऐसा ही रहो, नो। अगर तुम ये आदमी हो तो तुम किस तरह से कर सकते हो, तुम ये हो तो तुम करो। तो भी अपना थिंकिंग प्रोसेस तो हम बहुत डिस्कशन करते हैं। इट्स अ लवली प्रोसेस, यू नो, मगर ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा लंबा चलता है। हर साल प्रोडक्शन नहीं कर पाता हूँ, 2-3 साल में एक प्रोडक्शन होता है, मगर अच्छा होता है। पैसे भी जमा करने होते हैं, हर साल तो कर नहीं सकते, राइट? और ऑडियंस से कुछ नहीं लेते हैं, जिसको हम सिखाते हैं, जो बच्चों को सिखाते हैं, उससे भी हम कुछ नहीं लेते हैं, राइट? सो ये जो स्पर्श का जो आप जर्नी की बात कर रहे हो, तो ये स्पर्श थिएटर में इस तरह से हम बहुत ज्यादा एक्टिव है। हम कई बार एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं, हम थिएटर एजुकेशन भी करते हैं, जो स्कूल वगैरह में जाके टीआई, जो एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टीआई का ही एक प्रोजेक्ट है, तो वो भी हम काम करते हैं। और बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है, और बच्चे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीजों को। और सच में बोलूं ना, बच्चों को थिएटर सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद थिएटर है। मेरे True, हिसाब true. से बच्चे खुद थिएटर है, उसको कुछ मत सिखाओ, उसको बोलो तुम करो बस, और वो करेंगे, तुमको सिखा के चले जाएंगे। ये बच्चे थिएटर मैं सो तो 4 साल से ही आई हैव बीन एक्टिंग सिंस आई वाज 4 years old. 4 साल वाओ। से मैं एक्टिंग कर रही थी। तो शादी के बाद थोड़ा सा मतलब ये नहीं हुआ है, बट आई हैव डन प्लेज। उसके बाद मैंने थिएटर में बहुत सारा एक्टिंग किया, एंड मूवीज भी किए हैं, सीरियल्स भी किए हैं। तो मतलब एक्टिंग में मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी छोटे से ही। राइट लेकिन मम्मी का राइट। ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं थे, वो हमेशा बोलते थे नहीं 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 मत करो ये सब, अच्छा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब खत्म हो गया उसी समय। राइट। बट आई हैव बीन वांटिंग, अभी तो फिर से शुरू कर रहे हैं, लोग बोल रहे कि वी आर गोइंग टू मेक वेब सीरीज, तो आप इंटरेस्टेड हो क्या? हमने बोला डेफिनेटली आई विल गो, व्हाई नॉट। तो आपकी जो कुछ पिक्चर्स आपने भेजे थे जी, रिगार्डिंग योर थिएटर, वो बीच में हम लोग देख लें क्या? प्लीज कैन वी प्लीज सी प्लीज, दोस यस पिक्चर्स? यस 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 यस, I think some of the pictures I think viewers would like to see. या If you can help us with some of the theatre pictures that Mr. Murtuza had given us. He has some lovely theatre pictures. Here, I think you were speaking about. This is I was speaking about the theater itself. There was one of my interview which has been taken in Viceroy Hills with one of my very good friend, and he was talking about the theater, how theater was. जैसे मैंने अभी बात किया कि मैं किस प्रकार का theater करता हूँ. So जैसे आप एक you are running a so lovely kind of a channel. ये भी एक मेरे बहुत अच्छे friend है. So he was taking my interview about the theaters कि किस तरह से theaters आप करते हो, कैसे करते हो, क्या workshop होता है वगैरह. So this is that pic. This is again, ये आपने शायद नाम सुना होगा, खामोश अदालत जारी जारी है, ये लास्ट ईयर का प्रोडक्शन था. And this was directed by my wife, name is Pratna. She is also a wonderful theater artist, right? Wow. So मेरा theater में मेरा family भी involve है. हाँ, पैसे खत्म हो जाते तो पापा से मांगता हूँ, लाओ पैसा दो. तो he is a producer, my wife, my child is an actor, I am a director. So right, so this is the thing, and मेरे जो family है, मेरी wife, my kid are helping me a lot in the theater also. Okay. So, Right. see, these are some of your other pictures, but I think we Yeah, can see later. But yeah. we can talk about some of your other things. When I heard about your wife, I saw one of your pictures of your wife, and somebody had actually, and then I realized it was your wife because she shared your poster. So I realized that Yeah. was your wife. I knew everybody's Yes. excited, so she must be watching you right now. And I would Yes. like to Yes. give her Yes. an applause for helping you out in your theater. So nice of you, and nice of her, in fact, because to get the support of the family का जो support जब मिलते हैं, तब तो बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं, पूरा Yes. दुनिया Yes. आ सकते हैं. I think the family support is very very important, and being a woman, I think she deserves a big round of applause. Definitely. So yes, so that was wonderful. आपकी जो थिएटर के जो स्टोरीज हमने सुने हैं, and all this, मैं एक प्रश्न मुझे है मन में. जी. ये तो आपने बताया, you mentioned many names कि हमने ये बनाया. All these are your scripts, आपने लिखे हैं कि
No, कि few are the script which is already written by renowned, हिंदी राइटर्स। कुछ मैंने जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाला है तो वो कॉन्सेप्ट मेरा था, तो फिर मैं बहुत कम लिखता हूँ, बट बहुत कम लिखता हूँ, राइट। लिखता हूँ मगर बहुत कम लिखता हूँ, मगर मेरे ज्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। एंड फ्यू ऑफ राइटर्स आर देयर मैं जिनके पास लिखवाता हूँ, राइट। सो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया वाला जो प्ले था, राइट, इसका नाम है भास आवाज, जो यहाँ के गुजरात के बहुत रिनॉन्ड राइटर है, तो इनसे मैंने लिखवाया था। जो मैंने लर्निंग डिसऑर्डर का जो प्ले था, वो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो भी गुजराती और हिंदी राइटर है, डॉक्टर धनेन पारेख, उनसे मैंने लिखवाया था, राइट। फिर मैंने वापस स्किज़ोफ्रेनिया को वापस बनाया, तो मैंने वापस लिखवाया। कुछ प्ले जो ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत अच्छे स्क्रिप्ट है, मगर कुछ प्ले का मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ, मतलब एक दो जो स्टोरीज होती हैं, फिर राइटर का परमिशन वगैरह लेके फिर मैं वो उसकी लेके बैठता हूँ, फिर मैं उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप करता हूँ, फिर कुछ चीजों को लिखता हूँ, कुछ चीजों को जॉइंट लगाता हूँ, और फिर मैं बनाऊँ। बिकॉज जनरली मैं मानता हूँ कि नाटक क्या है, नाटक जो है अगर बुक में है, राइट, सो ये स्क्रिप्ट है, और नाटक तब बनता है जब स्टेज पे जाता है, राइट, नहीं तो स्क्रिप्ट है। तो स्टेज पे जाने वाला ले जाता है एक्टर डायरेक्टर, राइट। सो अगर मुझे लेके जाना, इफ आई वांट टू टेक अप दिस थिंग, सो आई वांट दिस थिंग टू बी डन इन दिस मैनर, सो with the writer permission and all that, I try to modify it also, and if I am not that willing, then I don't perform also, right. So थोड़ा मैं ज्यादा इस पे बहुत प्रिसाइज होता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा जो मेन जो उद्देश्य, माय मेन एम, माय गोल शुड नॉट बी रन अवे, एंड कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ का कुछ तो मैसेज तो जाना चाहिए, ताकि कुछ लोगों में कुछ तो अवेयरनेस आए, कुछ तो स्टिग्मा कम हो, कुछ तो लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आए, थिएटर देख के ही तो आए, राइट। अच्छा, सो ये मिस्टर मुर्तजा, डू यू हैव दीज, ये जो आपने प्लेस किए हैं स्टेज में, तो ये आप यूट्यूब में डाले हैं क्या कुछ? कैन वी सी दीज? नहीं, नहीं डाले हैं। नहीं अच्छा अच्छा। डाला है। वो अभी मुझे कभी प्लान्स बहुत, है, आपके प्लान्स है कि यस, आप ऐसे आप चैनल प्लान्स बना? हाँ जी। प्लान्स है मुझे। तीनों मुझे बहुत लोग बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं कि सर आप इतना सारा करते हो, यूट्यूब चैनल बना लो, फिर आप ये कर लो वो कर लो। मैं कितना करूँ? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, नहीं, बहुत सारा काम बाकी है वैसे भी मुझे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम honest confession, I am very weak in presentation, myself in presenting me, kind of, and I'm not kind of an that, a gadget freak के भाई ये कर दूं, ये पोस्ट कर दूं, वो कर दूं। काम बहुत कुछ करता हूँ, बोलता बहुत कम हूँ, और उससे भी कम मैं प्रेजेंट करता हूँ। सो यही मेरा जर्नी है ज्यादा, क्योंकि उस काम में इतना बिजी रहता है तो मैं इतना प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता हूँ। जैसे सारे वीडियोस भी बनाए हैं, कभी बहुत सारे मुझे प्रपोज आया कि आप उसका चैनल कर दो, ये कर दो, आप उससे भी पैसा कमा सकते हो, आपका थिएटर का खर्चा कम हो जाएगा, there is so many ideas, there is so many people, lovely people who want to really help भी करना चाहते हैं, but definitely मैं करूंगा, definitely मैं ये मेरे प्लीज प्लीज सपना है। आप कीजिए। वी वांट टू सी योर प्लेज ऑन यूट्यूब, सो दैट हम बोल सकते हैं कि देखिए कितने अच्छे अच्छे जी काम जी कर रहे जी, हैं लोग। एटलीस्ट वी बिल्कुल बिल्कुल। पीपल कैन बी इंस्पायर्ड। हम लोगों की यहाँ पे जब हम दिखाएंगे, देन एटलीस्ट पीपल कैन बी इंस्पायर्ड बाय योर वर्क, बिकॉज यू आर डूइंग द, आई लव द वे यू सेड दैट इतने सारे काम है और कितने करूं। मतलब नहीं, भगवान ने आपको इतने सारे दिए हैं, सो मच ऑफ एनर्जी ही हैज गिवन यू। आई थिंक यू कैन कैरी ऑन। या एंड आपकी डेफिनेट, आपको बहुत इंशाल्लाह। बहुत 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 विशेस, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा विशेस। मेरा ये है कि आप और भी आगे जाइए और भी बनाइए, एंड इफ वी कैन हेल्प, हम लोग अगर कुछ भी हेल्प कर सकते हैं आपको विद स्टोरी, विद समथिंग और द अदर, वी आर मोस्ट विलिंग। आई एटलीस्ट आई एम देयर ना, थैंक यू, आई एम देयर। थैंक यू तीना, बहुत इट्स अ ह्यूज हेल्प, थैंक यू। I थैंक यू। will always be there, at least in some way or the other. कुछ ना कुछ तो we can definitely help. Now, श्योर। Mr. Murtaza, apart from all this, आपने जो कुछ आपने हम लोगों को बोला है, but you are also an adventure seeker. You are an adventurer. You are a person who is going out and looking for adventure. And when we are sitting at home here, but you have already done your part of the adventure. तो आप ये यस, adventure के बारे में हम लोग के viewers के एक बार बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सी दिस इज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू माय माइंड, राइट, adventure, क्योंकि when I was in school I started my journey towards the Himalayas, and every year twice or thrice I used to visit Himalayas for trekking and all that. So एक थोड़ा एक लर्निंग में देना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि ट्रैकिंग एक अलग
चीज है जो बहुत अच्छी है, अलग को करनी चाहिए। और माउंटेनियरिंग थोड़ा अलग है, राइट। सो माउंटेनियरिंग इज द स्केलिंग द पीक, जो हिमालयास के जो पर्वत है, जो माउंटेन्स है, जो बहुत हाइट पे है, उसको हम स्केल करके समिट पे पहुंचते हैं, इज माउंटेनियरिंग। And trekking, there's a fixed trails in the Himalayas, and you need to trek down, and you reach to certain heights up to 18,000, 20,000 feet. But the mountaineering is the scaling the height of almost 21,000, 23,000 feet, and it's been very difficult journey. So I am a trained mountaineer. Trained mountaineer means you start your, if someone is interested in mountaineering and trekking, so let me guide them. You start your journey with small treks to Himalayas. There's 1,000 treks, thousands of treks in entire Himalayas. Himalayas is, my dear friends, 2,400 kilometers long, and 4,000 is the breadth. मतलब कितना बड़ा, my God, square feet में हिसाब करो तो कहाँ पहुँच जाए। So इतना बड़ा Himalayas is 70 to 80% is with India. So there is a, again plus point. And you start journey with small treks and all that. And जैसे आपका 16-18 years का एज हो जाता है, when you start your 12th खत्म हो जाए, 10th खत्म हो जाए, in that you start with the courses that is called basic mountaineering course, then advanced mountaineering course, then MOI, there is a method of instructor course, then there is a search and rescue course. I am also skier, मैं ski भी करता हूँ हिमालयस में जाके, right? तो ski के भी अलग अलग, जो विंटर में पूरा स्नो हो जाता है फिर अब you ski down, so there is also basic advanced MOI course. तो मैंने ट्रैकिंग से जर्नी शुरू किया, फिर मैंने ये सारी चीजें सीखी। नाउ द डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी, आई एम फ्रॉम प्लेन्स, प्लेन्स मतलब गुजरात। तो गुजरात प्लेन्स मानते हैं यहाँ पे हमको, तो वो समुंदर है हमारे बाजू में, तो हम प्लेन से आते हैं और हम जाते हैं हिमालयस। तो सी अल्टीमेट डिफरेंस है, जो वहाँ के जो लोग होते हैं दे आर वेरी एनर्जेटिक, हिली पीपल, वहाँ पे ही रहते, तो उनका जो मेथड है, जो तरीका है, वो हमसे बहुत ज्यादा एनर्जी में होता है, हम कॉम्पीट नहीं कर पाते। सो फॉर अ प्लेन, बॉय फ्रॉम अ प्लेन वाज टफ टास्क at initial level for me to scale this kind of thing, but gradually I started develop। and ऐसे देखो, अगर आप प्लेन्स में देखोगे ना, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स इन माउंटेनियरिंग किया है, बहुत कम है, क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। For almost 40-45 days, we are into deep Himalayas, very deep, where there is no connection, no mobiles, no communication at all. What's happen in the rest of the world, we don't know. We are very deep. There is a very hard conditions in snow, in rocks and all that. There's a temperature is -25, -30. You are not having the ample kind of food over there. There's a very difficult training. There's a very hard eyes, and you need to wear the entire gears and all that, and your energy is nearly 25% down, and that time you need to go with, and it's very dangerous। माउंटेनियरिंग बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। हमको एक लाइन सिखाया, सिंगल मिस्टेक कॉस्ट लाइफ। सिंगल मिस्टेक करोगे आपका जान चला जाएगा, सिंपल, दैट्स इट, राइट। एंड सक्सेस लाइज इन करेज। आप जब तक करेज नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये दो लाइन के बीच में माउंटेनियरिंग है, राइट। सो तुमको गलती नहीं करना है, गलती करोगे तो मरोगे और मारोगे, राइट। सो बहुत ज्यादा प्रेशर, और जब तक आप साहस नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। सो ये है पूरा जर्नी। तो ये सब करने के बाद I was the first Gujarati ever who had scaled the peak in Leh Ladakh called Stock Kangri in winter condition, right? Wow. So मैं गुजरात से टीम लेके गया था, यहाँ से हम ले गए, लेह से हम बहुत अंदर Mount Stock Kangri स्केल किया, that was 23,000 height peak, and that in November जब -35 degree temperature था, and it was like a freeze। How freeze? I just want to give an example। पानी तो होता नहीं पीने के, क्योंकि ये जो बॉटल अभी आपको लिख रहा है वो वहां पे बर्फ बन जाता है, राइट। सो पानी निकालो, आप उसको गर्म करो, बॉईल करो, अब सॉरी, बर्फ निकालो, उसको गर्म करो और रखो। मान लो तुम 2-3 काम करके ऐसा कुछ करके वापस आया ना, तो ये वापस जम जाता है। सो दैट इज काइंड ऑफ एन फ्रीजिंग, यू नो, माइनस मतलब आपका जो डीप फ्रीज है ना, उससे भी 35 कम। So in that condition, so always mountaineering has been very tough journey, and शायद माउंटेनियरिंग मेरे जीवन में है ना, इसीलिए मैं अच्छा साइकोलॉजिस्ट और थिएटरिस्ट पे हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज मैंने इतना टफ टाइम देखा, तो मुझे बाकी के टफ टाइम कुछ लगता ही नहीं।
राइट? सो मतलब यू आर वेरी इनटू डीप, कोई कनेक्शन नहीं, कोई फैमिली मेंबर्स नहीं आपके साथ, आपके पास इतना सारा फूड है, आपके पास पानी भी बहुत कम है, आपको बर्फ को मेल्ट करके सिर्फ थोड़ा बहुत बनाना है और थोड़ा बहुत खाना है और ऊपर चढ़ते जाना है। स्केल डेंजर है, देयर इज अ वेरी हाई विंड, कई बार 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर विंड स्पीड से जा रही है, और आप स्नोफॉल हो रहा है, आपके जो टेंट हो तंबू जो वो कहीं पे उड़ जा रहे हैं, कहीं पे सामान चला जाता है, कभी बैटरीज खत्म हो जाती है। मतलब मैं आपको कितनी डिफिकल्टीज गिनाऊं, आपको लगेगा कि ये क्या है। मतलब एक नॉर्मल इंसान जो अपनी हाईएस्ट कैपेबिलिटी अगर दिखाए और वो वहां पे सर्वाइव कर सके तो वो बंदा माउंटेनियर बन सकता है, नहीं तो नहीं। राइट? सो ये अगर अगेन इट कम फ्रॉम द पैशन, यू नीड टू बी वेरी कॉन्क्रीट फ्रॉम योर हेड एंड देन बॉडी विल रिस्पॉन्स। यू नॉट, आई डोंट फील कि माउंटेनियरिंग में सिर्फ बॉडी स्ट्रांग चाहिए, मैं मानता हूँ यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि मुझे वहां पे रहना है और मुझे ये करना है। That thought process should be churning your mind. That give you the booster and energy to stay in that tough conditions. And not staying, you need to perform also. And if you're not going to perform, you're going to freeze and die. So आपके पास दो ही ऑप्शन, या तो परफॉर्म करो या तो मर जाओ। सो दैट एक्सट्रीम। अगर मैं बोलते 35 डिग्री है, माइनस में बैठा रहूंगा और मैंने बैठ लिया, मैंने 4 घंटा, तो मैं ऐसा ही रह जाऊंगा एंटायर। आई विल नॉट एबल टू मूव लाइक दैट। So in mountaineering, nights are not to sleeps. Night has to be awake. You need to wake up. अगर आप सो गए तो बहुत प्रॉब्लम है। So we start climbing by 3 AM. रात को 3 बजे हम क्लाइंब करना शुरू करते हैं ताकि जब सुबह सनराइज हो 6 बजे 7 बजे, सो हम समिट पे पहुंच जाए, पीक पे पहुंच जाए। एंड मैं क्या बताऊँ, मेरे पास फोटोग्राफ है शायद, मैं कभी बताऊंगा आपको। When you're on top and you see the sun is down, here down, और आपके नीचे से सनराइज हो रहा है और आप इतने टॉप पे हो, व्हाट अ Wow. एंड देयर इज अ फुल क्लाउड्स ओवर देयर, लाइक इन जैसे सफेद चादर बिछाई है और सूरज नीचे से कहीं आ रहा है ऊपर, और फिर आप वापस आओ, बिकॉज आफ्टर 10 11 एम 12 एम वहां पे वाइट आउट हो जाता है, आप कुछ नहीं देख पाते हो, आपको नीचे आ जाना पड़ता है। राइट? सो दिस इज द थिंग। मतलब वहां पे 10 11 बजे दिन खत्म, अगर तुम वहां पे कहीं पे रह गए तो पूरा व्हाइट आउट हो जाएगा, तुम फंस जाओगे, वहीं पे फ्रीज हो जाओगे, सुबह दोबारा बॉडी मिलेगी। राइट? सो सी दिस इज द टफ कंडीशन। सो फिर जाके आपको जितना स्केल किया है उससे डबल स्केल डाउन करना है। राइट? क्योंकि द सेकंड प्रॉब्लम, ऑक्सीजन बहुत कम होता है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कह रहा, because you're gasping for the oxygen, you are not able to take breath, सांसें नहीं मिलती है आप। राइट? और आपको लगता है फिर आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना है, और ऑक्सीजन तो ऐसे नहीं मिलता है जो हॉस्पिटल में मिलता है, इतना बॉटल होता है वो चलाना पड़ता है। सी तो स्कैर्सिटी क्या होता है, चीजों का वैल्यू क्या होता है, इतने शॉर्ट में कैसे लंबा चलाना है, एवरीथिंग टीच बाय माउंटेनिंग। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि इफ यू वांट योर होलिस्टिक अप्रोच टू बी अ पर्सन, you should go with mountaineering. Right? It is a tough, it's a challenging, but it's a game of fear. Right? So ये जर्नी है। फिर मैंने बहुत सारे माउंटेनिंग स्केल किए और बहुत माउंटेन में गया। राइट? आई एम इंडियन माउंटेन फाउंडेशन से मेरा लाइसेंस ऑफिसर के तौर पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ। So it was like a wonderful journey and it is so close to heart, so close to my heart and mind कि अगर आप मुझे बोलो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एनी, ऐसे हिमालयस। राइट? आप मुझे बोलो क्या करोगे रिटायर्ड होके, हिमालयस। एनी टाइम। राइट? सो दिस इज एंड यही डिफिकल्टी जब मैंने एक्सपीरियंस किया, यही पैशन है मैंने एक्सपीरियंस, तब मैंने प्रोग्राम बनाया जो आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, पर्सनली डेवलपमेंट प्रोग्रामर विद एडवेंचर साइकोलॉजी एंड थिएटर। मैं मानता हूं कि अगर आपका पर्सनालिटी को डेवलप बहुत अच्छे से करना है तो सिर्फ बैठ के आप बात सुनोगे तो नहीं होगा, सिर्फ थिएटर से नहीं करोगे, या आपको एक पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। सो इन 2001 जैसे मैंने एमओआई मेरा खत्म किया, मास्टर्स का माउंटेनियरिंग 2001 में ही खत्म हो गया था, और मास्टर्स इन साइकोलॉजी तभी भी खत्म। मैंने सारी चीजें पैरेलल लिखी, कभी वेट नहीं किया ये हो जाएगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। राइट? मैंने माउंटेनियरिंग, थिएटर और ये मेरा साइकोलॉजी साथ साथ में करता है। तो जैसे मैंने खत्म किया 2001 में, मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज इन पर्सनल डेवलपमेंट विद एडवेंचर साइकोलॉजी एंड थिएटर। And in that time, in 2001, I was an expert and qualified
इन ऑल ऑफ द थ्री थिंग्स। और फिर मैं यहाँ से ग्रुप को लेके गुजरात के प्लेन के बच्चों को लेके, एंड देयर वाज अ नो एज बार, कोई भी आ सकता है मेरे कैंप में, राइट। बच्चा भी आ सकता है, उसकी मम्मी भी आ सकती है, उसकी दादी भी आ सकती है, राइट। सो आई टेक देम टू द वेरी मॉडरेट लेवल ऑफ पार्ट ऑफ एन हिमालय, जैसे मनाली है। सो जैसे हम वहाँ पे जाते हैं, वी स्टे इन टेंट, एंड वहाँ पे हम उनको सुबह के टाइम में वी गो विद एडवेंचर एक्टिविटी, आफ्टरनून इज द साइकोलॉजिकल सेशंस वेयर वी गो विद साइकोलॉजी, एंड इवनिंग इज फॉर थिएटर्स। सो वहाँ बच्चे थिएटर भी परफॉर्म करते हैं हिमालयस में जाके, वहाँ Wow. बच्चे साइकोलॉजिकल स्किल भी सीखते हैं हिमालयस में जाके, और वहाँ पे सुबह के टाइम में एडवेंचर भी करते हैं। सो फिजिकल, माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिचुअल, एवरीथिंग, एंड दैट फॉर 10 डेज। तो 10 डेज के अंदर फिर मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी किया कि यहाँ के जो पर्सनल प्रोग्राम्स है और ये प्रोग्राम हम वहाँ जाके करते हैं बच्चों के ऊपर, तो देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द पर्सनालिटी। एंड द प्लस पॉइंट इज दैट वहाँ पे जो बच्चों ने जो कंडीशंस में सीखा है, वो अभी तक, अभी तो वो जो छोटे बच्चे 2002-05 में, अभी तो बहुत बड़े हो गए, राइट। अभी वो बच्चे वो बच्चे कुछ मेरे साथ थिएटर में भी काम करते हैं। सो उन्होंने जो सीखा है अभी तक उनके साथ है। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। सो अभी भी उनके साथ है, और अभी भी वो याद करते हैं तो सर आपने वो बताया था ना, मैं अभी भी ऐसा ही कर रहा हूँ, राइट। मैं इतना पानी वेस्ट नहीं करता, आपने बोला था ना कि इतना पानी कितना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द थिंग। सो Okay, so तो आप जो जब बोलते हो कि मैं इतना सारा करता हूँ लेकिन मैं और कितना करूँ, लेकिन आपकी स्टोरी सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और भी आपकी जो कल के लिए और भी स्टोरीज है, मतलब और भी बहुत सारे स्टोरीज है जो आप भी नहीं बता रहे हो कि कल परसों और उसके बाद भी जो स्टोरीज होंगे, ये तो खतरनाक स्टोरीज होंगे। आप जो स्टोरीज बोल रहे थे ये सुन के तो मुझे ऐसा बहुत है, लग रहा है। बहुत। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक यू रिसीव द राष्ट्रीय गौरव अवार्ड in Delhi for outstanding performance and remarkable role in personality development concept with adventure activities, psychological method and drama techniques with qualification and expertness. The concept has been launched for the first time in India. यही Yes. concept आप शायद बोल रहे थे. This is the नहीं, concept you are talking about. हाँ, वो मैंने वो अवार्ड वाली बात नहीं बताई, वही मगर आपने जो उसमें सही से पढ़ा है। सो यही कॉन्सेप्ट के लिए आई वाज बीन अवार्डेड राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार। आई वाज द फर्स्ट इंडियन who had launched the program, has doing the things with kids, and then after it's followed by so many people. That's very good. मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा Superb. I'm so proud that you are here with us today, you know. Seriously, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही हूँ that you know thank I you, have a guest of your stature in my show today. thank Seriously, you, बहुत ज़्यादा गर्व हो रहे हैं. So I also wanted to ask you that in the beginning I had read out that you are the founder and director of Sparsh. Sparsh के जी बारे में थोड़ा सा viewers को बताइए आप. जी। What is it all ओके, about? सेम जैसे जैसे मैं हूँ वैसा ही मेरा स्पर्श है, क्योंकि Spurs I have started in almost in 2001 and all that, and then I start. See, right now Spurs is a center for self-engagement and wellness center. Okay, and इसमें psychology के अंदर there are three heads. One is a psychological assessment. जैसे मैंने पहले बताया कि we do psychological assessment means why the person is behaving like that. What is the problem? That is called psychological assessment. Second part is the psychotherapy. Psychotherapy means the teaching and healing the process, the popping up कैसे हम करें. And the third part is remedial education, right? Remedial education में क्या है कि जो बच्चे को learning disability है, जो बच्चा slow learners है. Now learning disability मतलब doesn't mean कि cognitively low, MR नहीं है वो उसका IQ नॉर्मल है, मतलब उसको पढ़ाई लिखाई में तकलीफ है. जैसे तारे जमी पे जो मूवी बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मेरा नाटक अजब बच्चों की गजब कहानी, वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, राइट. सो ये बच्चों का हम यहाँ पे रिमिडियल एजुकेशन या रिमिडियल थेरेपी करवाते हैं, राइट. सो ये हमारे बेसिकली 3 हेड है, जहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, साइकोथेरेपी होती है, और रिमिडियल एजुकेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है. वी ऑल्सो रन वर्कशॉप्स with teaching and learning of psychotherapy and psychological assessment, because mental health professional बहुत कम है. मेरा एक और भी गोल है लाइफ के अंदर कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ सूरत में, तो मैं अकेला ही ना रह जाऊं या मेरे साथ और लोग भी जुड़े.
सो मैं यहाँ पे दो कॉलेज है, पीटी महिला कॉलेज है, एमटीबी आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पे मैं साइकोलॉजी या प्रैक्टिकल पढ़ाने भी जाता हूँ, राइट, एज अ गेस्ट लेक्चर। मुझे एजुकेशन में भी मुझे अर्न नहीं करना है, मुझे मैं चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं जितना भी करूँ उतना कम, तो ताकि मैं और लोगों को सिखाऊं, ताकि ये और लोग जो नई यंग जनरेशन है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग साइकोलॉजी ऑप्ट करके मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बने, ताकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी ऑल्सो इन अ लर्निंग प्रोसेस। नाउ वी हैव दिस थ्री हेड्स। जैसे मैंने बात किया, जैसे रिमीडिएशन में भी बच्चे को जो लर्निंग प्रॉब्लम होता है उसका भी ग्राफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है, साइकोथेरेपी में भी चेंज आता है। सो दैट इज अ वन पार्ट। सेकंड पार्ट इज फर्स्ट थिएटर। थिएटर की जो मैंने बात की, तो जहाँ पे हम प्ले प्रोडक्शन करते हैं, वर्कशॉप करते हैं और हम प्ले को बना के उसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये। एंड द थर्ड इज द स्पर्श एडवेंचर। अब स्पर्श एडवेंचर दिस प्रोग्राम जिसकी मैंने अभी बात की, ये हम प्रोग्राम स्पर्श के अंडर ही में ही काम करते हैं, राइट। एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद स्पर्श वेलनेस प्रोग्राम। हम मूवमेंट स्टूडियो बना रहे हैं अभी, वी आर मेकिंग इन प्रोसेस। अभी लगभग 3-4 महीने में वो जगह रेडी हो जाएगी। सो जो मैंने मूवमेंट थेरेपी की बात की, क्योंकि अभी हमारे पास स्पर्श के पास थोड़ा जगह कम है, सो हम एक स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं। स्टूडियो से बेनिफिट क्या होगा, तो मूवमेंट थेरेपी के हम सेशन ले पाएंगे, और जो थिएटर के लिए जो हमको डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि थिएटर करने के लिए जगह चाहिए, राइट, और जगह यहाँ ऐसे कोई देता नहीं। सो वी नीड टू एवरी टाइम टू रेंट देना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन चल रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म मिले आर्टिस्ट को, किसी को डांस करना है तो स्टूडियो यूज करो, थिएटर करना है तो स्टूडियो यूज करो, ड्रामा करना है तो स्टूडियो यूज करो, वुमेन थेरेपी करना है, सेमिनार्स करने हैं, वर्कशॉप्स करने हैं। सो वी आर कमिंग विद अ मल्टीपर्पज स्टूडियो काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं, और वहां पे वेलनेस होगा। और क्योंकि जैसे मैंने नेचुरोपैथी भी किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है योगा और प्राणायाम और मेडिटेशन से, एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। सो ये सारी चीजों के लिए एक अच्छा एम्बियंस और एक अच्छा स्टूडियो की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्पर्श को। सो वी आर कमिंग अप दिस। तो अगर आप स्पर्श देखने जाओ तो ये सारी चीजें हम उसके अंदर करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं और उनका वेरी गुड रिजल्ट इन दैट। हम बेस्ट है ऐसा नहीं, मगर वी ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कभी बेस्ट अब बोल दो तो आपका जर्नी एंड हो जाएगा, राइट। यू कीप ट्राइंग, you keep trying, you keep doing, right? So that's what we have. And I have a team also जो remediation section जो है मेरा, that जो मैंने मेरी वाइफ की बात की थी, प्रार्थना, she is a theater actor and a remedial therapist also. So she also working with me। मेरे साथ और टीम में डॉक्टर उर्वेश चौहान है, he is a psychotherapist, वो भी यहाँ पे काम करते हैं। So this तरह से we work, और मैं लोगों को ट्रेन भी करता हूँ। इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होते हैं हमारे यहाँ, तो लोग जो इग्नू से एमए कर रहे हैं या कहीं से एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, जिसको रिमेडिएशन सीखना हो, साइकोथेरेपी सीखना हो, असेसमेंट सीखना हो, तो आके मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, हम उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम भी करते हैं। तो दिस इज ऑल वी डू। और कभी कभी मौका जैसे टाइम मिलता है तो वी गो वर्कशॉप्स आल्सो एंड वी डू थिएटर्स आल्सो, दैट इज द थिंग। एडवेंचर प्रोग्राम कभी हमेशा हिमालय में होता है ऐसा, यहाँ हमारे सूरत में भी कुछ करीब में 150-200 किलोमीटर के अंदर छोटे हिल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे लोनावाला आपने सुना होगा महाराष्ट्र में, यहाँ पे सापुतारा है, तो यहाँ पे हम छोटे प्रोग्राम्स भी करते हैं। सो अभी मैंने क्या किया है कि स्पर्श के अंदर मैंने कुछ फिक्स नहीं, आई हैव कस्टमाइज्ड। जैसे सपोज एग्जाम्पल के आपके पास गुवाहाटी में ग्रुप है और आपको ये प्रोग्राम करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या करना है, एडवेंचर पार्ट कितना है आपके पास करना है, आपको कितना समय है, कितना आप साइकोलॉजी में देना चाहते हैं, कितना आप थिएटर करना चाहते हैं, और फिर हम उस तरह से मैं उसको डिजाइन करता हूँ, और फिर मैं उनको उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। सो इसमें क्या होता है कि वो हम ज्यादा सेटिस्फाई कर पाते हैं क्लाइंट्स को, या हम अच्छे से उनको बता पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ आप वो ही करो। So I don't want to make them follow what I mean. I want what you want, so I can deliver that. So that's how we work.
So this is all Wonderful. about the stuff. I, Yes. I just love listening to each and every story that you're telling me, you know, about especially about Thank Spark you. also now. This is such a lovely thing that you have. And I hope this COVID thing goes away soon so that if anybody has any plans to go to your, to take up some sort of camping and all Yeah. these adventure sports and dance movement therapy and all these things, I think you can design something for the kids here. I'm sure their parents are going to send across because Yes. Yes. you're such an interesting person and you have got such a I mean, and especially the God of Award. This is like something that they are all going to be very proud of. That we are working with such a person. So I have one beautiful quote from you, which I really love. You had sent me this quote that success lies in courage and humanity, hard work, discipline, and honesty is the best policy. I just love this thing that you're saying. Before we leave, I would like you to at least tell the young people, because there are a lot of young people who are also watching you right now, and my videos and my programs are always meant to encourage young people, because I always love to inspire them with people like you. I bring in heroes, real life heroes from different parts of the world, and I present it to them, these people, and you are one of our heroes today. So I want you to actually give some sort of advice about anything, like maybe now that they're feeling so down and depressed and out and all, what is their Hmm. future, what they Hmm. could look forward, could they be hopeful for the future, because they feel that their future is very bleak and very dark, बहुत ही Hmm. अंधेरा दिख रहा है उन लोगों को। ये छोटे बच्चे जो हैं, आप अगर Hmm. थोड़ा बहुत कुछ बोल देंगे तो उन्हें थोड़ा सा Yeah. प्रेरणा मिल जाएगी, थोड़ा सा इंस्पिरेशन हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल see right now see because we all know okay right now what situation is going on right the first thing uh, future is dark and we are not able to do we may not be come up like these things so ये हमारा थोड़ा anxious mode है right अभी फ्यूचर किसी को भी नहीं पता है टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट आपको मुझे कल क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो नहीं पता है राइट वी कैन ओनली प्लान कि कल मेरा ये अपॉइंटमेंट है मैं कल इससे मिलूंगा इससे मिलूंगा दैट्स द प्लान बट यू आर एब्सोल्युटली ब्लैंक मैं आपको पूछूंगा कल 3 4 बजे एग्जैक्टली क्या करोगे मुझे बताओ वो शायद नहीं करोगे राइट सो व्हाट इज दिस that is okay, we are not sure about the future any moment of time but definitely right now we see it is not in a good shape but again it's a perception right it is not factual so मैं हमेशा सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपका जो भी थिंकिंग होना चाहिए वो थोड़ा फैक्चुअल होना चाहिए राइट फैक्चुअल थिंकिंग में आप क्या कर सकते हो कि आप अगर ये सोचो कि मैं कल कुछ नहीं कर पाऊंगा इससे अच्छा है कि आप एक प्लान बना लो कि मैं ये चीजें करना चाहता हूँ और आप उसके ऊपर काम कैसे करोगे उस पे अगर आप सोचना है अभी राइट नाउ मैंने बहुत सारे लोगों से अभी बात किया ड्यू टू पैंडेमिक मैंने एक दो वेबिनार भी किए थे सो व्हाट इज हैपनिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक एंड everyone was locked down and right now there is no movement to coming up but I would like to go in past when it started in April and that was all were completely locked down and we हमको लगता था कि 6 8 महीना चलेगा right but अभी आप देखो तो अभी थोड़ा मूवमेंट तो आने लगा है right so जो भी सिचुएशंस लाइफ के अंदर आती है अच्छी या बुरी that is not permanent that is the main thing every moment आज जो भी हो रहा है या जो हमारे साथ पहले अच्छी चीज हो गई वो भी परमानेंट नहीं है जो अच्छी चीज अगर परमानेंट नहीं है तो बुरी चीज भी परमानेंट नहीं है सो सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो परमानेंट नहीं है चेंजेस होने वाले हैं राइट अभी चेंजेस में हम बोले तो अच्छे भी और बुरे भी अगर हमें ज्यादा सोचे कि अच्छे चेंजेस होंगे तो अच्छी बात है मगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि बुराई होने वाला है बुराई राइट सो ये आपको जब भी इस प्रकार का थॉट आता है तो आप अपने आप को एक प्रश्न करो हर बार every time when you thought kind of this kind of a negative or if this kind of emotion generate to ask question to oneself right does this thought going to help me second question पूछो does this thought is coming to my mind does it has a logical reason दो क्वेश्चन करो आपको आंसर मिल जाएगा आपको पूरा विजन क्लियर हो जाएगा राइट ये नेगेटिव थॉट मुझे हेल्प करेगा आंसर आएगा नो अगर मेरा कल खराब जाने वाला है उसके पास आपके पास कोई एविडेंस है अभी नो
तो मतलब ये आपका थॉट इरेशनल है। जब आपका थॉट इरेशनल है, राइट, और कल आपका खराब जाने वाला है, उसका एविडेंस भी नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं, और ये दोनों चीज आपको हेल्प नहीं करने वाली। सो जब भी आंसर नो आएगा, आपको ऑटोमेटिकली आप हेल्पलेसनेस से आप हेल्पफुल मोड में चले जाओगे। जो मैंने आपको बताया, जैसे वी यूज दिस थिंग इन अ फ्यू थेरेपीज आल्सो, राइट। सो मैं तो बोलता हूँ हर एक, हम सबको आता है, राइट, सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सबको होता है। अगर मुझे नेगेटिव थॉट आया तो मुझे ही क्यों आया वो नहीं, वी आर ह्यूमंस, ह्यूमन हैज अ थॉट्स एंड इज अ वेरियस काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ थॉट्स, राइट। बट डज दिस, इट्स एन फैक्चुअल एविडेंस, और ये क्या मुझे हेल्प कर रहा है? नो। सो आई एम थिंकिंग ऑफ इट। So instead of, अगर if I'm thinking like this, if I'm making a plan of 5 things of tomorrow, but instead of 5 I can able to make the 3, that is my achievement, right? Instead of doing nothing. So what is the best thing for you? Plan something, try to execute, keep doing, keep working, right? So यही एकदम चीज है। मैं कुछ बड़ी बातें नहीं कहूँगा, आप ये करो वो करो, ये सब बोलते हैं, अच्छा, मगर प्रैक्टिकली आपको यही करना होता है कि आपको इसी तरह से आपकी सोच को डेवलप करना होता है। दिस इज हाउ द थिंकिंग प्रोसेस। मैं आपको बोलूँ पॉजिटिव थिंक करो, पॉजिटिव थिंक करो, क्या पॉजिटिव थिंक, राइट? सो क्या, कैसे? इससे अच्छा है फैक्चुअल थिंकिंग करो, लॉजिकल थिंकिंग करो, रैशनल थिंकिंग करो, तो यही आपका थॉट कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव। रादर थिंकिंग पॉजिटिव इज नॉट एक्चुअली हैपनिंग कि मैं अभी अभी, अब चलो मैं अभी पॉजिटिव सोचूंगा, अब मैं नेगेटिव सोचूंगा, मतलब क्या मैं अभी मैगी खाऊंगा फिर पिज्जा खाऊंगा? नहीं हो सकता है ना, नहीं। सो मैं क्या कल बनाऊं, मैगी बनाना है या मुझे पिज्जा बनाना है कल, तो मैं क्या क्या आज लेके आऊं तो मैं कल बना सकूं। एटलीस्ट मेरे पास सामने पिज्जा का आइटम होगा तो मैं कोशिश तो करूंगा बनाने के लिए। दैट्स इट, दैट इज द, तो यही है। तो इसी तरह से आप सोचो, और हमेशा आपको एक्टिव रहना है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते रहना है जो आपको अच्छा लगे। मेरे तरफ से कोई प्रिस्क्राइब मेन्यू नहीं है। हाँ, मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, मगर आपको नहीं भी लगता है। आपको जो अच्छा लगे, आपका जो दिल करे, हमारे में दिल का काम है जैसे पंप करना, तो हम बोलते हैं जो दिमाग करे, राइट। सो जो आपको अच्छा लगे वो करो, बट डू, दैट्स इट। जस्ट बी एक्टिव, जस्ट बी डूइंगफुल, एंड उसमें से आप मजा लो। एंड जो भी आप जो समय पे करो, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आई एम एंजॉयिंग राइट दिस मोमेंट, सो ये मुझे प्लेजर दे रहा है। और अब जो भी इंजॉय, जो भी मूवमेंट को, जो भी एक्टिविटी को एंजॉय करेगा वो आपको हैप्पीनेस देगा। और क्या चाहिए फिर? हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे इसकी वजह से मुझे हैप्पीनेस मिले या इसके लिए मुझे मिले? कोई नहीं, तुम अपने लिए ही करो बस, बाकी सब काम हो जाएगा। वाह मिस्टर मुर्तजा, आपके बात सुन के तो ऐसा लगता है कि मैं सुनते रहूं। सच में बोल रही हूँ कि इट इज लवली, यू नो द वे यू हैव एडवाइज्ड द यंग पीपल। आई हैव आल्सो बीन इंस्पायर्ड। मैं भी बहुत मतलब प्रेरणा मुझे मिल गए हैं। एंड आपने एक बहुत सुंदर बात बोला है, आपने बोला है कि करते रहो, यू कीप डूइंग whatever you're doing, keep doing, stay active. And that is what I have been doing. Actually, I had an accident last year in on 21st of November, and I almost went away, मतलब ऊपर चले गए थे, but वापस आ गए हैं। But from the 1st of January I have made it a point that I am going to make each moment special. और आज आपने जो मोमेंट्स दिए हैं, ये जो वंडरफुल मोमेंट्स, वंडरफुल स्टोरीज, वंडरफुल शेयरिंग जो आपने मेरे साथ और व्यूअर्स के साथ जो किए हैं, सच में दिस इज सो प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस। और जो आई स्टैंड इंस्पायर्ड. I'm sure all the viewers who are watching you, they will stand inspired by your story. And seriously, I'd like to thank you for coming to my show, Conversations with Tina. You have kind of enhanced the spirit, and I am feeling very invigorated to start my morning tomorrow. नहीं, next moment ही हम start करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा मैं active हो गई हूँ, so I'm going to start that moment with full vigor and with full of life. Thank you so much, Mr. Murtaza Railwaywala. Thank you so much. It has been my pleasure. Thank you, Tina. Thank you so much. It was a wonderful talking, nice opportunity. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye.